Hello friends, good morning you all. I am Pathan Mohammad Kalimullah Khan, Master of Science, Master of Education and having 22 years of experience in teaching this subject science. First of all, I welcome you to my YouTube channel Khan Academy Science. If you are new on this channel, please subscribe my channel so that you will get all my lectures regularly. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर हर वीडियो लेक्चर आपको रेगुलरली मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 10th standard CBSE, that is transportation in case of human being and plants. So friends, let's continue with this chapter. So let's continue with this chapter, transportation. Transportation in case of human being. This word transportation is very simple word. In our day-to-day life, many a time we have uses this word transportation. Transportation means transporting the material from one place to another place. Now in case of human being, the main transport system is the circulatory system. As you know that human being is multicellular organism, so having a special set of organ for transportation. आप लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है एंड दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज सर्क्यूलेटरी सिस्टम. Now circulatory system is also called as transportation system or transport system. So in case of human being, the transport system consists of the main medium of transportation is known as blood. सबसे पहले तो जो मेन मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है ब्लड. Then after blood vessels are there. There are two main types of blood vessels, that is arteries and veins. And the third is capillaries which join arteries and veins together. And the third important organ which involved in the transportation of human being is the heart, which is also called as the pump, which pumps the blood continuously throughout the body. Now one by one in detail about each part of this circulatory system and what is the role of that part in the transportation of material in the human being will learn. यहाँ पर हमको देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन से पार्ट इन्वॉल्व है और हर पार्ट का क्या रोल है. पहला पार्ट है ब्लड. सो व्हाट इज ब्लड इज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. आई एम ऑलवेज टेलिंग दैट व्हेनेवर आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन यू शुड थिंक सिंपली एंड गिव द सिंपल आंसर. चलो फिर फटाफट दे दो सिंपल आंसर. सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड. व्हाट विल बी द सिंपल आंसर? The simple answer will be blood is a fluid. Blood is a fluid present in the body of human being flowing through the blood vessel. Simple answer. Now in other words, if more detail you want to tell, what you will say, blood is a fluid connective tissue which is flowing through the blood vessels of human being. As blood is continuously flowing through the blood vessel, it never comes out of the blood vessel in the body parts of human being. This circulatory system of human being is known as closed circulatory system. Now, what material this blood transport? So, blood transport food material from small intestine to all parts of the cell. Blood transport food material from small intestine to all parts of the cell. Then blood transport oxygen from lungs to all parts of the body. Blood collect waste product from all part of the body and bring it back to the kidney. Okay, so this is the material which is transported from the blood. ये material है जो blood transport करता है अपने body में. Now what exactly the blood is? As I told you, it is a fluid connective tissue. अगर blood को हमने analyze करें तो क्या पता चलेगा? ब्लड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट एज वेल एज इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्ट. तो ब्लड को अगर हमने एनालाइज करें, हाउ यू कैन एनालाइज ब्लड?
If you took blood in a test tube, kept in centrifugal machine and centrifugate, तो क्या होगा, सॉलिड जो पार्ट है ब्लड का वो नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाएगा. So you can come to know that blood consists of two main parts. One is liquid, that is called as plasma, which is a straw color fluid material, and second one is solid part, which consists of blood vessels and the dissolved nutrient and waste material. Now in case of blood vessel, blood corpuscles, that is the blood cells. So as I told you, blood is a fluid connective tissue. क्या कहा मैंने, ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. टिश्यू का मतलब होता है कि इसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए. तो कौन सा ग्रुप ऑफ सेल है, रेड ब्लड सेल्स है. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज RBC. दूसरा नाम है उसका इरिथ्रोसाइट्स. दूसरा सेल है वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड सेल्स. इसका दूसरा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है WBC. इसको हम कहते हैं द erythrocytes, red blood cells, and white blood cells, WBCs, and third type of cell है platelets, blood platelets, thrombocytes. ओके, तो ये तीन टाइप के ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं. अभी पहला मेन पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स तीन टाइप के हैं. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लाज्मा कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड सेल्स में RBC कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, WBC का फंक्शन क्या है और प्लेटलेट का फंक्शन क्या है. सो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा. सो दीज मटेरियल आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म, एंड प्लाज्मा that is along with blood carry this material to various places. प्लाज्मा के अंदर ये सारे मटेरियल डिजॉल्व होते हैं और प्लाज्मा के थ्रू से ट्रांसपोर्ट होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स RBC contain one of the important constituent known as hemoglobin, which carry or transport oxygen from lungs to the all body cells. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है लंग्स में, और लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल में पहुंचाने का काम करता है. सेकंड सेल है वाइट ब्लड सेल्स. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिट्री और द डिफेंस फोर्स ऑफ आवर बॉडी. क्यों, क्योंकि वाइट ब्लड सेल किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी. जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर होते हैं ब्लड में, उनको किल करने का काम होता है WBCs का. एंड दैट्स वाई WBCs, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स, आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेंस फोर्स ऑफ आवर बॉडी. तीसरा है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट्स आर एक्चुअली नॉट अ सेल्स बट दे आर द पार्ट ऑफ द सेल्स, द फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स. इनका काम क्या है, हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. आपको पता है कि अगर हम एक्सीडेंटली हमारे बॉडी में इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड पास आउट होना शुरू हो जाता है. इफ़ योर इंजरी इज स्मॉल देन bleeding will stop after some time naturally. Why? Because God has given, nature has given a special mechanism to us. नेचर ने हमारे बॉडी को एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया है, उसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग. So naturally blood get clot in the part where injury takes place and it seals the injury to prevent the loss of blood. तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्लेटलेट्स का. जहाँ पर भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है, बॉडी कट होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, वहाँ पर सारे प्लेटलेट्स जाकर जमा हो जाते हैं एंड सील दैट पर्टिकुलर पोर्शन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड. सो इन दिस वे दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन. अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वह है ब्लड वेसल्स. So in our body there is a network, complete body having a network of muscular tube, larger and smaller, and that muscular tube through which blood is continuously flowing is known as blood vessel. There are three main types of blood vessel according to their function and structure. फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्लड वेसल्स तीन टाइप के होते हैं. पहला है आर्टरी,
second vein, and third one is capillary. So what are arteries? Arteries are nothing but the blood vessel which carry oxygenated blood. In other words, it is also known as pure blood from lungs to all parts of the body. As artery have to transport blood from lungs to all parts of body, that means they have to travel a longer distance. That's why they have to exert a pressure and maintain a pressure in the blood. So to maintain the pressure in the blood, the wall of the artery are thick so that it can exert a pressure on the blood and maintain the blood. And blood is flowing under high pressure through artery. That's why the wall of the artery are thick. They do not have any internal valves and they are deeply situated in our body. These are arteries. Now veins. Veins carry impure blood, that is deoxygenated blood, from different parts of body to the heart. And from heart it goes to the lungs for purification. If you see the structure of vein, they are comparatively thin walled. आर्टरी से अगर वेन को कंपेयर करेंगे तो वेन आर्टरी से थिन वॉल्ड है. उसका जो ल्यूमेन होता है, अगर हमने उसका ल्यूमेन देखे तो ल्यूमेन ऑफ द वेन विल बी बिगर देन द आर्टरी एंड द स्पेस इनसाइड विल बी मोर एंड there is wall of the vein is thinner compared to the artery, and the blood which is flowing through the vein is not under high pressure. So to maintain the pressure of the blood, wall this vein having internal walls. Now the third type of blood capillary is blood vessels are capillaries. Capillaries are very thin walled, very small, minute, and they connect arteries and veins together. So capillaries are very narrow blood vessel which connects arteries and veins together. What will be the function of capillary? Now these capillaries are directly in contact with the body cells and actual exchange of food, water, carbon dioxide takes place between blood and the body cell is in capillary. तो बच्चों ये याद रखना है कि हमारा जो ब्लड है वो कभी भी डायरेक्टली बॉडी सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है. ब्लड फाइनली कहाँ जाएगा? कैपिलरी में जाएगा, और कैपिलरीज बहुत थिन वॉल्ड होते हैं. दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द बॉडी सेल. तो यहाँ पर एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा कैपिलरी में से. कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें से फूड मटेरियल सेल में जाएगा और सेल में का वेस्ट मटेरियल कैपिलरी में आएगा. सो ब्लड out of these three blood vessels, the capillaries are the blood vessels which are in contact with the body cells where actually exchange of gases takes place. Now let's continue with the next part, that is the heart. Now in detail about heart we'll learn how heart perform its function and what is the structure of heart. Actually in your previous classes you have learned about the morphology of circulatory system, that is you have studied the structure. Here we have to study how it function, how it work for the transportation. Now you know very well बच्चों, आपको पता है कि हार्ट क्या है. हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन. क्या मतलब होता है इसका? कि कंप्लीट जो हार्ट है पूरी तरह से मसल्स का बना हुआ है. उसमें कोई भी दूसरा पार्ट नहीं है, बोन नहीं है और दूसरा पार्ट नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स. इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन एंड इट एक्ट एज अ पंप टू ब्लड, टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसा कि हमारे घर में वाटर को वाटर टैंक तक, टेरेस तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक पंप है, उसी तरह हमारे बॉडी में ये हार्ट है. हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड को प्रेशर से पास करता है. कहाँ तक? बॉडी के हर पार्ट्स तक. नाउ इफ यू सी एक्सटर्नली इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. अपर पार्ट विच इज connected to the chest muscles, that is broader, and lower part is narrower. Upper part is called as base and lower part is called as apex. Now it is provided with, here you can say, the four pulmonary vein. This side 2 and this side 2 pulmonary veins, right and left pulmonary veins. It is also provided with aorta, that is a big artery which brings out the blood from the heart, and beside that it is having superior vena cava and inferior vena cava which supply
blood to the heart. Now see, if you see, this is all about the external structure, but if you see the internal structure, you can see internally complete heart is divided into 4 chamber. This is left auricle, left ventricle, right auricle, right ventricle. 4 chambers are there. कितने चेंबर है? 4 चेंबर्स हैं. Okay. Now in between that 4 chamber, one vertical septum is there. This vertical septum is there, and this vertical septum divides the heart into 2 section, right and left half. Left half and right half. Completely it is divided into 2 half, left half and right half. So in left half oxygenated blood is there, in right half deoxygenated blood is there. Okay. Now if you compare the wall of upper chamber, now upper 2 chamber, now here horizontal septum is also there, due to which 4 chambers are there, upper 2, lower 2. Upper 2 chambers are called as atria. ऊपर के ये जो 2 चेंबर है उसको हम बोलेंगे एट्रिया प्लूरल में, अगर सिंगुलर बोलना है तो हम बोलेंगे एट्रियम. लोअर 2 chambers are called as ventricles. Okay. Now see, observe the wall of all 4 chamber. चारों चेंबर्स के वॉल को हमको देखना है केयरफुली. देखो, लेफ्ट एट्रिया का जो वॉल है वो थिनर है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल थिकर है, राइट एट्रिया का वॉल थिनर है, राइट वेंट्रिकल का वॉल थिकर है. अब अगर हमने चारों चेंबर के वॉल को कंपेयर किया तो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल किसका है? लेफ्ट वेंट्रिकल का है. क्यों? What is the reason? Why the wall of the ventricle is thicker compared to auricle? क्योंकि वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करके प्रेशर एग्जर्ट करके बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना. अगर वॉल थिक होगा तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, वॉल थिन होगा तो प्रेशर कम एग्जर्ट होगा. दैट्स वाई द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर कंपेयर टू ऑरिकल. अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता, ठीक है भाई, वेंट्रिकल को ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुँचाना है, इसलिए उसका वॉल थिकर है कंपेयर टू ऑरिकल. ऑरिकल का काम क्या है? खाली ब्लड को ऊपर से नीचे वेंट्रिकल तक पहुँचाना, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रेशर एग्जर्ट करना है, ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, उसका वॉल थिनर है. लेकिन वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाना है, इसलिए उसका वॉल थिकर है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल सबसे ज़्यादा थिकर क्यों है? बिकॉज इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से होकर सारे बॉडी पार्ट्स में जाना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाना है उसको, इसलिए वेंट्रिकल को हाईएस्ट प्रेशर एग्जर्ट करना होता है. दैट्स वाई द वॉल ऑफ वेंट्रिकल कंपेयर टू रिमेनिंग ऑल चेंबर इज थिकेस्ट. कंपेयर अगर हमने किए तो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल का है, और राइट वेंट्रिकल का थोड़ा थिक है क्योंकि उसको कहाँ भेजना है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ओनली अप टू द लंग्स, इसलिए उसका वॉल थिक है लेकिन उतना ज़्यादा थिक नहीं है. So upper 2 chamber are called as auricle, lower 2 chambers are called as ventricle. Both the chambers are divided separated vertically by vertical septum, due to which left side having oxygenated blood, right side having deoxygenated blood. Now the atria and the ventricle have walls between them. सारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट एट्रिया ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में एक ओपनिंग है. ये ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग. अब बच्चों याद रखो, एट्रिया से वेंट्रिकल में जब ओपन होता है तो उसका नाम कैसा हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग. अब ये कौन से एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा? लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो नाम क्या होगा? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल ओपनिंग. ओके. अब ये ओपनिंग को गार्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व है वहाँ पर, उसे कहते हैं द बाइकस्पिड वाल्व. दूसरी ओपनिंग यहाँ पर ओपन हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टा की, और ऑर्टा को कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ पर एक वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व. तो ये क्या करेंगे? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन करेंगे. उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल में और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, क्योंकि ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है. राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग.
तो ये ओपनिंग है, इसको गार्ड करने के लिए भी यहाँ पे एक वॉल है, ये बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल। अब यहाँ पर और एक ओपनिंग है, वो किसकी है, पल्मोनरी ऑर्टा की। तो पल्मोनरी ऑर्टा और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी जो ओपनिंग है उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व। सो इन दिस वे ऑल दिस वाल्व कंट्रोल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट द ब्लड टू फ्लो बैकवर्ड। ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता, सीधा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल। सो इन दिस वे दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट विच इन्वॉल्व्ड इन द function of heart. Now let's go to the next part, that is the working of heart. How heart work. अब यहाँ पर ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिखेगा कि हार्ट का एक्चुअल फंक्शन कैसा होता है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू, देन आई विल शो यू द थेरोटिकल पार्ट। पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद मैं आपको थेरोटिकल पार्ट बताऊँगा। नाउ लेट्स सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पे आपको हार्ट क्लियरली नज़र आ रहा है। अभी ये हार्ट का हमने 4 चेम्बर्स तो देख लिए, 4 चेम्बर्स। नाउ दिस इज नथिंग बट द पल्मोनरी वेन। ये इधर से 2 पल्मोनरी वेन है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये है राइट पल्मोनरी वेन। इनका काम क्या है? सो पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स बैक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। 4 पल्मोनरी वेन ओपन होते हैं लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से आते हैं? लंग्स से। क्या काम है इनका? लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तैयार हुआ उसको ये लेफ्ट एट्रियम में लाकर छोड़ते हैं। पल्मोनरी वेन इधर 2 है और इधर 2 है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट लंग टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट लंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये पिक्चर में आपको दिखेगा, ये है आपका लेफ्ट लंग, ये है राइट लंग। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। अब इसमें से 2 पल्मोनरी वेन निकलेंगे जो क्या करेंगे? ब्लड को यहाँ पर लेके आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये 2 है, ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों तरफ से, एक राइट वाला आएगा, एक लेफ्ट वाला आएगा। 2 पेयर आएंगे, यानी 4 पल्मोनरी वेन आएंगे। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पर आया? यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। कब आएगा? व्हेन द एट्रिया और ऑरिकल रिलैक्स। हार्ट में कैसा होता है? पहला कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ऊपर वाला पार्ट यानी एट्रियल पार्ट हार्ट का रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा मतलब अंदर का जो चेम्बर है उसमें का एयर प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर के वेसल्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सो अंडर प्रेशर ग्रेडेशन, बाहर का ब्लड अंदर आएगा। पल्मोनरी वेन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और सुपेरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो पहला पोजीशन समझो कि जब हार्ट का ऊपर वाला पार्ट, एट्रियल पार्ट रिलैक्स होगा तो 4 पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और सुपेरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, जब ब्लड इसमें आ गया, अब क्या होगा? अब ये जो वॉल है पल्मोनरी वेन के बीच में वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर तो वॉल नहीं है सुपेरियर वेना कैवा में, क्योंकि वो ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है। इन्फीरियर वेना कैवा में और राइट एट्रियम में वॉल है। जब ब्लड ऊपर आ जाएगा पूरा, वो वॉल क्लोज हो जाएगा। वॉल क्लोज होने के बाद व्हेन द ब्लड विल फिल इन बोथ, नाउ व्हाट विल हैपन? द वेंट्रिकल रिलैक्स एंड ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला पार्ट रिलैक्स होगा। जब ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, so it will exert a pressure on the blood. Due to that pressure, this wall between right atrium and left atrium and left ventricle will open, and the wall between right atrium and right ventricle will open. जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, उसमें जो वॉल है वो वॉल ओपन हो जाएगा। इधर का भी वॉल ओपन हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। From right atrium, the deoxygenated blood goes to the left ventricle, right ventricle. तो राइट एट्रिया का
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रिया का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले क्या हुआ था, एट्रियल रिलैक्सेशन, बाद में वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा ये प्रेस होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, ये जो ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। नाउ ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड फ्रॉम वेंट्रिकल, नाउ दिस वॉल, aortic wall and pulmonary aortic wall will open, that is also called as aortic wall and pulmonary aortic wall. So what will happen, the oxygenated blood will go into aorta and deoxygenated blood will go into pulmonary aorta. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ऑर्टा में जाएगा। अब पल्मोनरी ऑर्टा बाहर आने के बाद उसके दो ब्रांच हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। वो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा और ऑर्टा बाहर आने के बाद उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गोज थ्रू द आर्टरीज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हो गया एक वे। जब बॉडी में जाने के बाद उसमें का ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, वो ब्लड फिर से आएगा लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स उसको वापस हार्ट में पहुंचाएगा। इन दिस वे, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेम ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस। एक ही ब्लड दो बार फ्लो होता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरे बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। दैट्स वाई ब्लड सर्कुलेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टरी में से ब्लड जाएगा, यहाँ पर कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा और वेन वापस उसको कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आएगा। सो दिस इज हाउ वर्किंग ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस। नाउ वंस अगेन I am repeating whole working of heart. Now see step 1, when the left atrium relaxes. Working of heart में क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रिया का रिलैक्स होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन। जैसे लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा, पल्मोनरी वेन में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। Second, when it contracts, the left ventricle expand and the blood flows into it. जब वो contract होगा तो उसमें का blood left ventricle में चले जाएगा। Then the left ventricle contract, बाद में left ventricle contract होगा and the oxygenated blood from the left ventricle pumps through the aorta to all parts of the body. After circulating through all parts of the body, deoxygenated blood enter the right atrium through the vena cava. सुपेरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा हमने देखा था वहाँ पर। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, द राइट वेंट्रिकल एक्सपांड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आएगा। देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड गोज टू द पल्मोनरी ऑर्टा एंड फ्रॉम पल्मोनरी ऑर्टा इट गोज टू द लंग्स। इन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन इज एडेड इन द ब्लड एंड अगेन द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड इट इज ब्रिंग बैक to the left ventricle. Since blood flows through the heart twice in one cycle, एक साइकिल में एक ब्लड दो बार क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। It is called as double circulation. Since blood flows through the heart twice in one cycle, it is called double circulation. तो ये हो गया एक मैकेनिज्म सर्कुलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का ह्यूमन बीइंग में। लेकिन ये कहाँ पर होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। लेकिन अगर ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी की जो सेल्स है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। वहाँ पर भी कुछ मटेरियल होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, उसको तो ब्लड नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड तो ब्लड कैपिलरीज में होता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में और एक टाइप का फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ? इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर स्पेस। बॉडी में जो हमारे बॉडी के सेल्स है, ये सोमैटिक सेल्स, इसमें ये जो स्पेस है, ये स्पेस के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल रहता है उसे कहते हैं लिम्फ। कैसा है ये? कलरलेस फ्लूइड है।
इट इज़ फॉर्म व्हेन द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। अब ये फ्लूइड आता कहाँ से है, तैयार कैसा होता है? तो हमारी ये जो ब्लड कैपिलरी है ये बहुत थिन वॉल्ड है। जब प्रेशर से ब्लड उसमें से पास होता है तो ये थिन वॉल्ड होने की वजह से कुछ साइड जो प्लाज्मा है ब्लड का वो कैपिलरीज में से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो इंटरस्टेशियल स्पेस यानी दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसमें जमा हो जाता है, दैट वी कॉल्ड एज लिम्फ। अब लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज विच फॉर्म लिम्फ वेसल एंड जॉइंस इनटू लार्ज वेन। तो ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक कैपिलरी में से फ्लो होता है एंड देन इट इज़ फाइनली जॉइंस टू द लार्ज वेन। लिम्फ का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो एक्सेस ज़्यादा वाला इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है कहाँ पर? इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में, वो फ्लूइड को वापस ब्लड में ट्रांसफ़र करने का काम लिम्फ का है। इट कंटेन लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स। इसमें भी एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और उसका फंक्शन है टू किल द जर्म्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये जर्म्स को किल करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नाउ जैसा मैंने टॉपिक का नाम आपको बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, तो अब हमको देखना है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसा होता है? तो प्लांट्स में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। सो इन केस ऑफ प्लांट फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड। प्लांट में कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है? फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट एंड द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इज ऑल्सो समटाइम इट इज ट्रांसपोर्टेड। तो प्लांट्स ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए प्लांट्स में भी क्या है? स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वैस्क्यूलर सिस्टम। दैट सिस्टम इज नोन एज vascular system, and this vascular system or vascular tissue consists of two type of tissue, one is xylem and another one is phloem। दो टाइप के vascular tissue होते हैं, xylem and phloem। क्या कौन कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फूड, वाटर एंड मिनरल, ये मेन मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फूड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? फूड प्रोड्यूस होगा लीफ में, और लीफ से बॉडी के हर पार्ट में, यानी नीचे वाले पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में, दोनों तरफ होगा। That's why the transportation of food is known as the bidirectional or two-way traffic। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? रूट से लीफ तक ही होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं वन वे ट्रैफिक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज टू वे ट्रैफिक, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर इज नोन एज वन वे ट्रैफिक। नाउ लेट्स सी हाउ दिस पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट परफॉर्म इट्स फंक्शन। पहला है जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को कहाँ से? रूट से लेने का है और पहुँचाना है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Water is present in the soil which is absorbed by the root, you know very well. Minerals are also present in the soil in the form of dissolved state which is also transport to all parts of the body। अब जाइलेम का अगर हमने माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमको पता चलेगा कि जाइलेम कंसिस्ट ऑफ जाइलेम वेसल एंड ट्रैचिड। दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जाइलेम में, एक जाइलेम वेसल और दूसरा ट्रैचिड्स। वाटर एंड मिनरल इंटर द रूट बाय डिफ्यूजन। अब यहाँ पर जो वाटर है ग्राउंड में वो सेल के अंदर रूट सेल्स में आएगा कैसा? डिफ्यूजन प्रोसेस से आएगा, अंडर प्रेशर ग्रेडेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडेशन। बाहर के प्लेस में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रूट सेल्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन होगा, अंदर का वाटर बाहर आए, बाहर का वाटर अंदर जाएगा। देन ड्यू टू रूट प्रेशर दैट वाटर इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक हो गया रूट प्रेशर। लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा है तो नीचे से अगर रूट ने कितना भी प्रेशर एग्जर्ट किया, कैसा प्रेशर एग्जर्ट होता है? तो ये है रूट के सेल्स, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटर जाएगा रूट के सेल में, पहले ये रूट की सेल स्वेल हो जाएगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो वो प्रेशर से दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, चौथे सेल में आएगा।
जाइलम ट्यूब में आ जाएगा अंदर और वो ट्यूब में से फिर ऊपर चढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, 100 फीट्स 200 फीट्स का है, अब इमेजिन करो आप कि आपकी जो घर होता है, बिल्डिंग होती है, अगर वो सिंगल स्टोरी है तो उसकी हाइट मैक्सिमम 10 to 15 फीट होती है आपके वाटर टैंक की। तो ग्राउंड से वाटर टैंक तक वाटर ले जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पंप लगता है, पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप लगता है, तभी वाटर ऊपर जाता है। अब यहाँ पर प्लांट 100 फीट हाइट का है और वाटर रूट से प्लांट के टॉप मोस्ट लेवल तक जा रहा है, तो यहाँ पर तो कोई वाटर पंप फिट नहीं है। देन व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो मैकेनिज्म इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल। दो मैकेनिज्म है, पहला रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। तो नीचे से रूट प्रेशर एग्जर्ट करेगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ेगा और ऊपर से यहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि लीफ के जो स्टोमेटा है उसमें से वाटर ट्रांसपायर होगा, वाटर रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उतना स्पेस एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी होने की वजह से वहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा और नीचे का प्रेशर हाई हो जाएगा, तो वाटर को सक करेगा, सक्शन पुल एग्जर्ट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये दो मैकेनिज्म है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ड्यू टू विच वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट गोज अप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज ईच एंड एवरी लीफ। तो ये हो गया हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस आर द ट्रेचेस, दिस इज द वेसल एलिमेंट्स एंड द फाइबर सेल्स। नाउ लेट्स गो हाउ फूड इज ट्रांसपोर्ट। तो दूसरा जो टाइप का टिश्यू है प्लांट में वो है फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोएम के जो पार्ट है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? लीफ से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अदर पार्ट में। तो फूड प्रोड्यूस हो रहा है लीफ में, लेकिन वो फूड का नीड रूट में भी है, स्टेम में भी है और ऊपर के पार्ट में भी है, नीचे के पार्ट में भी है, लीफ और फ्लावर्स में भी है। तो लीफ में से फूड रूट को भी जाएगा और ऊपर वाले पार्ट को यानी फ्लावर एंड फ्रूट्स को भी जाएगा। इन दिस वे द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ प्लांट इज नोन एज टू-वे ट्रैफिक। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रहा है फूड मटेरियल का। लीफ का फूड स्टेम में जा रहा है, लीफ का फूड रूट में जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। जैसा हमने वहाँ पे देखा था जाइलेम में, वैसा फ्लोएम में भी दो टाइप के सेल्स है, एक है सीव ट्यूब और दूसरा है कंपेनियन सेल। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द एंड वॉल। नाउ फूड फ्रॉम द लीव्स is transferred to the xylem by the energy of ATP molecule. Due to osmotic pressure, water enter the phloem and help in the transport of food. तो यहाँ पर एक चीज़ हमको डिफरेंस देखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में कहीं पर भी हमको एनर्जी का नीड नहीं हुआ, एनर्जी नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एनर्जी लगेंगी। कौन सी एनर्जी लगेंगी? ATP, यानी ये एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ATP का एनर्जी के यूज़ होकर लीव्स में से फूड कहाँ जाएगा? जाइलेम में जाएगा। अब जाइलेम में जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? वाटर है, तो वाटर क्या करेगा? उसको ढकेलेगा ऊपर, वाटर प्रेशर एग्जर्ट करेगा जिसकी वजह से फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। सो इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज the process which need energy, but transportation of water and mineral do not need energy. So this is how xylem and phloem conduct the food, water and mineral in the plant. This is all about transportation in case of plant. तो बच्चों आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का देखा है और ये टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट। बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इस पर लॉन्ग आंसर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलरली मेरे सारे लेक्चर्स के वीडियो आपको आते जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। Okay, so for today
I think we'll stop here. Stay at home, keep keep patience and maintain the health of yourself as well as your family. Thank you very much. Thank you.